we're starting with big breaking updates coming in. The UP Chief Minister Yogi Adityanath has sparked a major debate with his remarks, likening the actions of Babar's men in Ayodhya 500 years ago to the current incidents in Sambal as well as Bangladesh. He accused certain elements of working to disrupt social unity. Listen in. दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है जो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। My colleague Adib joins us on the broadcast with the details. Adib, at a time when political leaders, including the Samajwadi Party, the Congress leaders, including Rahul Gandhi, wanted to visit Sambal amid the unrest there, Yogi Adityanath, in an extension of his "Batenge to Katenge" message, says the social unity is under threat. Well, definitely, Pradima Singh, and this is the first time after the Sambal violence that Chief Minister Yogi Adityanath has spoken about the Sambal violence. And in fact, last night also when he held a meeting, review meeting of the law and order situation, he also directed the officials that no matter what, whoever the people are involved in the violence, no one should be spared. And he gives stern instructions to the officials of the Uttar Pradesh police also and the local administration that strict action should be taken against those who were involved in the violence. And now he's talking about the Babar, and he's saying that what Babar did 500 years ago, the same things are happening today in Bangladesh and in Sambal. So this is what Chief Minister Yogi Adityanath has made, and it's a big statement coming directly from the Chief Minister Yogi Adityanath, where he's comparing Sambal, the situation in Sambal, with that of the what's happening in Bangladesh, and he's saying that the social unity of Sambal is under threat. But he has, on the other hand, he has also given instructions to the officials of Uttar Pradesh police to conduct a thorough investigation in this case. And he has given stern instructions that those writers who were involved in writing, who were the unruly mob that were charging on the police state, should not be spared in any case. So these are the instructions and the statement coming straight from Chief Minister Yogi Adityanath. Okay, all right. Let's listen into that message again. The Uttar Pradesh Chief Minister speaking about the incidents in Sambal and drawing a comparison with what's happening in Bangladesh to Babar's men in Ayodhya 500 years ago. Here's what the Chief Minister said. दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है जो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं।
ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। अनुराग भदौरिया of the Samajwadi Party joins us on the broadcast. अनुराग जी, आपने सुना होगा अभी जो मैसेज दिया है योगी आदित्यनाथ, an extension of what he has said before, बटेंगे तो कटेंगे. He has now said the DNA of those who are trying to divide in Sambal and Bangladesh is the same as the Babar DNA. So Professor Asim Peku. Hello. We have with us Mr. Anurag. हेलो अनुराग जी, आपको आवाज आ रही है? जी, मैंने आपको पहले बता दिया, जिस तरह की स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं, ये हिंदुस्तान के संस्कार और संस्कृति से नहीं मिलते। हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है। हिंदुस्तान के अंदर में आप बांग्लादेश को हिंदुस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है, उसका डीएनए हिंदुस्तानी है, उसका डीएनए भारतीय है। हम भारत के लोग, और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलके रहते हैं। इस तरह की बात करना ये सरासर दिखाता है कि आप समाज के अंदर में नफरत की राजनीति को जन्म दे रहे हैं। आप विकास की राजनीति नहीं कर सकते। देश को आगे ले जाना है तो आपको विकास की राजनीति करनी पड़ेगी, नफरत की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। इस तरह की जो राजनीति है ये हमारे देश को सूट नहीं करती है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। हम तो सरकार से बोला है, सरकार कुछ कीजिए, बांग्लादेश को लाल आंखें दिखाइए। बांग्लादेश में अगर हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, हिंदुओं के साथ, तो आप कार्रवाई कीजिए, कुछ तो कीजिए। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम हिंदुस्तान में बांटने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान के संस्कृति को और हिंदुस्तान के संस्कार को सूट नहीं करता है। इस तरह से आप सत्ता पाने के लिए आप समाज के अंदर नफरत की राजनीति करेंगे, ये ठीक नहीं है। सत्ता तो आती जाती रहती है, सत्ता बड़ी चीज नहीं है। बड़ा चीज है हिंदुस्तान का के लोग, हिंदुस्तान में जो आपसी सद्भाव है वो बड़ी चीज है। जो हमारी गंगा जमुना की तहजीब है, यमुना तहजीब है, वो बड़ी चीज है। ये बड़ी चीज नहीं है कि आप सत्ता कैसे पालेंगे। नफरत की राजनीति करना ठीक नहीं है। इसी हिंदुस्तान में सभी ने मिलकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, चाहे इशफाकुल्ला खां हो, चाहे वो शहीद भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो, सबने मिलकर देश को आजाद कराया है। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति जो भारतीय है वो हिंदुस्तानी है, उसको उतना ही अधिकार है जितना अधिकार किसी और को है। हर हिंदुस्तानी को एक ही अधिकार है, वो संविधान ने दिया है। तो ये संविधान सम्मत बात नहीं है जिससे बातें की जा रही है। जी, लेकिन जब उन्होंने संबल की बात की, उन्होंने कहा कि बांटने वाले, आपको क्या लगता है उनका इशारा किस तरफ है? उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है कि भारतीय जनता पार्टी बांटने की राजनीति कर रही है, जो नहीं करना चाहिए। Okay, all right. Thank you for joining us on the broadcast. So the Samajwadi Party says that this is the divisive politics of the BJP, the hate politics of the BJP. So Adib, Samajwadi Party has also previously hit out at the UP Chief Minister when he had said, "Batenge to katenge," saying this is the politics of hatred of the BJP. Yogi Adityanath, the UP Chief Minister, spoke in reference to Sambal as well. And remember, over the last few days as well, there has been a lot of politics that has been playing out over Sambal. Well, definitely, Pratibha, see, when the incident broke out in Sambal, a lot of politics is playing around after that. First, it was the Samajwadi Party delegation who were trying to visit, and then it was the Congress, followed by Priyanka Gandhi, Rahul Gandhi. They all tried to visit Sambal, and BJP has been saying that these opposition parties, they don't have anything to do with the Sambal or the people of Sambal. They are just seeing Sambal as their vote bank, and they're in a hustle that who is going to get there first. So this is how the BJP has been attacking. But this when Chief Minister Yogi Adityanath now has spoken about Sambal in reference, he's connecting Sambal with the Bangladesh, and he's saying that what Babar did 500 years ago, similar things are taking place in Sambal and Bangladesh. And Samajwadi Party is once again hitting out at Chief Minister Yogi Adityanath, saying that this is the politics of BJP. They are trying to spread hatred in the society, in the community, and so this is how the BJP and the Samajwadi Party is attacking BJP
on the statement given by Chief Minister Yogi Adityanath, where he's comparing the situation that's unfolding in Sambal with Bangladesh. But Pratibha, see, whatever happened in Sambal till now, the state government is focusing on how they can restore the normalcy in the region, and for that reason they have also banned the entry of outsiders. In the All right, Sambal Adib, I request you to stay with us just a moment. Dinesh Sharma ji also joins us on the broadcast. Remember, he had also spoken on Yogi Adityanath's message and had said that the BJP's message is एक हैं तो सेफ हैं, नॉट बटेंगे तो कटेंगे. दिनेश शर्मा जी, आज योगी आदित्यनाथ जी ने दोबारा बात की है संभल की, और उन्होंने कहा है कि बाबर के लोगों की जो डीएनए थी, द सेम डीएनए दैट वी आर सीइंग इन संभल एज वेल एज इन बांग्लादेश. व्हाट इज द बीजेपी स्टैंड? देखिए, उन्होंने कहा तो जिस परपेच में है वो बिल्कुल सही है. बीजेपी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास, उस पर काम कर रहे हैं. उन्होंने एक हैं तो सेफ हैं कहा. उसमें ये तो नहीं कहा कि हिंदू एक हो, केवल वो हो. सभी लोग यानी हिंदू और मुसलमान एक हैं, या कोई और अन्य जाति अगड़ी पिछड़ी अनुसूचित एक हैं. तो जो भी भारत में है, अगर एक है तो सेफ है, ये नारे का व्यापक अर्थ है. और लेकिन अगर कोई ये कहता है, योगी जी से कहते हैं कि डीएनए, जो आतंकी हैं, जो आतंकी सोच है दुनिया भर में, उनका डीएनए एक ही है. जो आतंकी सोच होते, जो खुलेआम बांग्लादेश में कत्लेआम कर रहे हैं, उनकी निश्चित रूप में बाबरी सोच है. बाबरी जो है आतंकी सोच है. आतंकी सोच का नाम बाबरी सोच है. और जो पाकिस्तान के कारतूस मिलते हैं, जो अमेरिका के कारतूस मिलते हैं, और उनके आधार पर यानी विदेशी शक्ति का कहीं ना कहीं समावेश है, उसके आधार पर कोई अगर खुलेआम गोली लेके चल रहा है, क्या हमारे उस मुस्लिम बंधु मरे हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कहीं इसी प्रकार के सोच वाले लोगों ने यहाँ के लोगों में सद्भाव व्यक्त करने के लिए. समाजवादी पार्टी ने कहा है कि आप भारत के जो लोग हैं उनके डीएनए पे सवाल उठा रहे हैं, ये बांटने की राजनीति बीजेपी कर रही है. वो हमारे हैं, यहीं अशफाकुल्लाह हमारे पूर्वज हैं, अब्दुल कलाम हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, अब्दुल हमीद हमारे सम्मान के धोतक हैं. उनके बारे में कोई उंगली थोड़ी उठा सकता है. लेकिन लादेनी सोच है, बाबरी सोच है, तो ये औरंगजेबी सोच है. ये सोच तो भारत की नहीं है ना. आज ही हमारे राज्यसभा में एक मित्र ने क्वेश्चन उठाया था कि जो विदेशों में, खाड़ी देशों में जो हिंदुस्तान का मुसलमान जा रहा है, उसके साथ में अत्याचार और शोषण लोग कर रहे हैं, उस पर सरकार क्या कर रही है, ऐसा एक ने सोच उठाया. तो हिंदुस्तान का सब मुस्लिम थोड़ी ऐसा कोई है. Okay, all right. Dinesh Sharma ji, thank you for joining us on the broadcast. So the BJP defending that statement. Thanking Adib as well for those inputs. And let's get you more updates as well. Viewers, bulldozers are rolling in UP's Sambal district. Municipal